Hi everyone. So now many candidates will be receiving the communication assessment mail from Accenture. In this video, we will be talking about the communication assessment mail from Accenture or communication round. So for communication round, I just want to clarify one thing. I will be telling you the last year pattern. Why I am telling you the last year pattern? Because as I told you, this year the pattern is changed for cognitive and technical. We already know about it, right? Cognitive and technical, the pattern is changed. Okay, currently I don't have any information that for communication assessment the pattern is changed or not. So for currently we will be talking about the last year pattern. If the pattern is changed, if anyone is giving the exam recently for 2026 batch on campus, then please comment out the new pattern. Okay, if you have the new pattern, or if they have changed the pattern, then please comment out the new pattern in the comment section, because currently I don't have any information regarding that the communication assessment pattern is changed. So just I will be telling you the last year exact pattern, what kind of questions they had asked. Okay, and which sections you will be getting. First of all, make sure to like this video. Also one thing, if you are getting the communication assessment, mostly most of the candidates actually pass the communication assessment. For the interview preparation, you can start your interview preparation right now with the notes link will be in the description. For crack interview notes, you will be getting the interview notes for each and every subject, whatever they ask in your interviews, like oops programming, STL HR question, DSA theory, project based questions, CS fundamental, SQL queries. Everything will be there in the notes, so you can purchase. Link will be in the description. Let's start with the communication assessment pattern. So first of all, talking about communication assessment, the duration of the assessment is approximately 30 minutes. Okay, 30 मिनट्स का असेसमेंट लगभग होता है, लगभग 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट्स में आपको चीजें अपनी इसमें कंप्लीट करनी होती हैं। You will receive a separate email with timelines and login details to participate in this assessment. Okay, communication assessment will assess you on the below mentioned parameters: sentence mastery, vocabulary, fluency and pronunciation. ये ऑफिशियली एक्सेंचर की तरफ से बताया जाता है कि ये 4 टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर मेजरली आपको जज किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हुए टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, जो रीसेंट पैटर्न हमने देखा है कम्युनिकेशन असेसमेंट का, उसमें दे आर आस्किंग टोटल 8 रीडिंग क्वेश्चंस, टोटल 16 रिपीटिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड आंसर्स ये 18 से 24 के बीच में हो सकते हैं। देन सेंटेंस बिल्ड है, जो जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। स्टोरी रिटेलिंग है जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं, एंड स्पीकिंग में 2 क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे आपके सेपरेट सेपरेट सेक्शंस होते हैं। सारे सेंटेंस जो आपके सेक्शंस हैं ये सारे सेपरेट हैं। ठीक है, आपको ये सभी सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद रीडिंग, दिस इज द मोस्ट बेसिक सेक्शन एंड सबसे ज्यादा इजी सेक्शन ये आपका रहता है। ठीक है, बेसिक एंड इजी सेक्शन, इसमें आपको कुछ ज्यादा, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, काफी इजी सेक्शन है, बेसिक होता है। सो इसमें करना क्या पड़ेगा, रीडिंग वाले सेक्शन में यू विल बी गेटिंग मल्टीपल सेंटेंस। ओके, यू विल बी गेटिंग मल्टीपल सेंटेंस जो कि आपके स्क्रीन पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि वन बाय वन वो सेंटेंसेस को रीड करना है। जैसे सपोज आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ही वॉज गोइंग टू द लंडन। ओके, सो कुछ भी लिखा है आपके सामने, ही वॉज गोइंग टू द टेम्पल। ओके, कुछ भी लिखा है आपके सामने, बस आपको वो सेम सेंटेंस को क्या करना है, रीड करना है और बोलना है। आपकी स्क्रीन पर जो सेंटेंस है वो डिस्प्ले होगा, उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, बोलना है। जब आप उस सेंटेंस को बोलोगे, वो आपका जो टूल है वो ऑटोमेटिकली, जो मेटल है, वो कैप्चर करेगा आपकी वॉइस को और वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपने सही बोला है कि नहीं बोला। तो रीडिंग का जो सेक्शन है बहुत ज्यादा इजी होता है। इसमें आप कोशिश करना कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अपने सही करो। देन अगला सेक्शन होता है रिपीटिंग। सो रिपीटिंग के सेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर टोटल आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड आप ऐसा सोच सकते हो कि इन 16 क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट 6 to 7 एक्सेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें यूएस का भी एक्सेंट होगा, यूके का भी एक्सेंट होगा, पोलैंड का भी एक्सेंट होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी यहाँ पर आपको एक्सेंट देखने को मिलेगा, आपको इंडियन एक्सेंट भी देखने को मिलेगा। सो आपको सभी एक्सेंट में, अलग अलग एक्सेंट्स में आपको यहाँ पर सेंटेंस सुनाई देंगे। ठीक है, सो आपको एक वॉइस आएगी, या तो मेल की वॉइस होगी या फीमेल की वॉइस होगी। सो वो आपको अलग अलग यहाँ पर एक्सेंट में कुछ सेंटेंस बोल रहे हो। सो जो भी सेंटेंस आपने यहाँ पर सुना है, जो भी आपने लिसन किया है सेंटेंस, आपको वही सेंटेंस को क्या करना है, रिपीट। ये सेक्शन काफी सारे बच्चों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और इस सेक्शन के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए।
बिकॉज एक्चुअली में काफी बार यूएस यूके या पोलैंड का जो एक्सेंट है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि काफी बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाले सेक्शन के लिए खासकर आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना, बिकॉज इस सेक्शन में अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपको आसानी से समझ में आएंगे कि क्या चीजें बोली जा रही हैं और आप आसानी से यहाँ पर रिपीट कर पाओगे उन चीजों को। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस सेक्शन के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना, बिकॉज इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं एंड इसमें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा वर्सन टेस्ट की प्रैक्टिस आप करके जाना। यूट्यूब पर आपको काफी सारे वर्सन टेस्ट मिल जाएंगे। देन आगे बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। ये एक और सेक्शन है जो इसमें पूछा जाता है जो कि काफी सिंपल है। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कैसे आते हैं। ठीक है, ओके। जैसे आपसे पूछा जाएगा फ्लाई कौन करता है, बर्ड या ह्यूमन। आपसे पूछा जाएगा फ्लाई कौन करता है, बर्ड या ह्यूमन। आप क्या बोलोगे, बर्ड। 1 to 2 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाइक फायर क्रैकर्स कब चलाए जाते हैं, होली पर या दिवाली पर। ठीक है, तो ये आपको सुनाई देगा सेंटेंस। ठीक है, ये आपको सुनाई देगा, तो आपको रिपीट करके आंसर इसका देना है, लाइक दिवाली पर। ओके, सेंटेंस आपको सुनाई दिए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, लाइक जैसे इसमें क्वेश्चन हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस कितनी एज पर बनता है। सो यू नीड टू टेल आफ्टर और एट 18 ईयर्स। ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड, वो पूछे कितनी एज पर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, तो यू कैन से 18 ईयर्स। ठीक है, सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली आपका 1 वर्ड या 2 वर्ड का आंसर होगा, और इस टाइप के आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको सुनना है क्वेश्चन कि क्या बोला गया एंड उसके बाद आपको रिपीट करके क्या करना है, उसका आंसर देना है 1 वर्ड में या 2 वर्ड। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर होगा। देन जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेंटेंस बिल्ड। सेंटेंस बिल्ड क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस मिलेंगे। जैसे सपोज एक सिंपल सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल। काफी बेसिक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूं, स्कूल आई एम टू गोइंग। अब इस सेंटेंस को मैंने लिख दिया स्कूल आई एम टू गोइंग। अब अगर इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस तो ये है, जबकि जो क्वेश्चन होगा उसमें आपसे कुछ ऐसे सेंटेंस पूछे जाएंगे, स्कूल आई एम टू गोइंग। तो आपको क्या करना है, उसका जो करेक्ट सेंटेंस है लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, बस आपको वही रिपीट करना है। ठीक है, बेसिकली आपको जंबल्ड सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग जंबल्ड सेंटेंस आपको मिल रहे होंगे। आपको उन जंबल्ड सेंटेंस को क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है, बेसिकली रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, आप रीअरेंजमेंट कर लोगे तो आपके जो जंबल्ड सेंटेंस है वो आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द नीड जो आपको करनी होगी, आपको अलग अलग पार्ट में सेंटेंस मिलेंगे विच यू नीड टू कंप्लीट। देन आगे वी हैव स्टोरी रीटेलिंग। व्हाट इज स्टोरी रीटेलिंग। सपोज आप आपके कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको एक स्टोरी का नरेशन किया जाता है कि कॉलेज में कैसे एडमिशन हुआ, एडमिशन होके फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था, फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स कितने आए, मैंने कौन कौन से फेस्ट में पार्टिसिपेट किया। तो सपोज एक ये छोटी सी स्टोरी है 6 से 7 सेंटेंस की जो आपके सामने रखी गई, और ये आपको मतलब बेसिकली आपने सुन ली। ठीक है, ये 6 to 7 सेंटेंस की स्टोरी आपको सुनाई गई। ठीक है, ये बात यहां तक अपन को समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है कि ये जो भी आपको स्टोरी सुनाई गई है, बेसिकली आपको अपने सेंटेंस में इस स्टोरी को दोबारा से रिपीट करना। आपको जो स्टोरी सुनाई गई उसमें बेसिक बेसिक जितने भी सारे पॉइंट्स बताए गए उनको रखते हुए आपको अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में आपको उस स्टोरी को क्या करना है, रीटेलिंग। रीटेलिंग मतलब क्या होता है, सेम स्टोरी जो आपको सुनाई गई आपको वही सेम स्टोरी दोबारा से बतानी है। इसमें बस ये चीज है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस स्टोरी में थे, पहली चीज तो आप उनको कवर कर रहे हो, और दूसरी बात आपकी ग्रामर सही है रिटेलिंग में। बस अगर ये 2 पॉइंट आपके सही रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर आपको बोलना होता है। जैसे सपोज एक टॉपिक है योर फेवरेट फेस्टिवल,
सो जैसे सपोज हो सकता है किसी का दिवाली होगा, किसी का होली होगा, है ना। सो आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है उसके ऊपर आपको क्या बोलना है, कुछ टाइम तक बोलना है, 90 सेकंड 60 सेकंड्स, है ना। या फिर योर फेवरेट गेम, कोविड सिचुएशन, ठीक है, 2024 इलेक्शंस। सो कुछ भी टॉपिक हो सकता है। सो उस टॉपिक पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यू नीड टू थिंक अबाउट इट। सो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसे स्टार्ट करें, सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन देने के बाद you can give a brief idea about the topic, then summary. So आपको कुछ भी ओपन टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, बोलना है। सो यहीं पर आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट खत्म हो जाता है और यहाँ पे सारे सेक्शंस एंड हो जाते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।